آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ چار مینار راہرو پروجیکٹ کے بشمول پرانے شہر کے دیگر پروجیکٹس باوقار طریقے پر مکمل کیے جائیں گے۔ مجلس کی نمائندگی پر کے ٹی آر کا ایوان اسمبلی میں بیان۔ مجلسی اراکین اسمبلی نے مختلف مسائل پر حکومت کی توجہ مبذول کروائی۔ قتل کی وارداتوں کو روکنے سخت اقدامات ناگزیر، قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے حکومت سے کیا مطالبہ۔ نئے سیکریٹریٹ کا افتتاح ملتوی، ایم ایل سی ضابطۂ اخلاق کا حکومت نے دیا حوالہ۔ ریاست میں تقریباً 16,000 صحافیوں کو اراضی اور امکنہ فراہم کی جائے گی۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر کا ایوان اسمبلی میں بیان۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی حیدرآباد آمد، نیشنل پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا کیا مشاہدہ، تقریب سے کیا خطاب۔ قونصل خانہ ترکی نے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان حاصل کرنا روک دیا۔ راست کارگو سروس منتقل کرنے کی درخواست، ترکش ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں رقم کی جا سکتی ہے منتقل۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے، جس کے دوران کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین نے مختلف مسائل پر حکومت کی توجہ مبذول کروائی۔ قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی نے شہر میں ہو رہی قتل کی وارداتوں کو روکنے اور امن و امان کی برقراری کے لیے سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے بیان دیا کہ پرانے شہر میں جاری تمام ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے ریاست کے صحافیوں کو امکنہ اور اراضیات فراہم کرنے کا بھی تیقن دیا۔ اسمبلی کارروائی سے جڑی تمام خبروں پر آئیے محمد اختر کے ساتھ ایک تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بجٹ اجلاس میں مطالبات زر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومت اور پولیس کو ریاست میں امن و امان کی برقراری رکھنے اور فرقہ پرست طاقتوں کو کچلنے کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دن دہاڑے کیے جانے والے قتل کے واقعات پر قابو پانے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے جائیں اور سخت کارروائی کی جائے، جبکہ 2 پہیوں والی گاڑیوں اور آٹوز پر لگائے گئے چالانات کو معاف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اور شہر کی عوام پہلے ہی سے گیس سلنڈرز، پیٹرول اور ڈیزل کے علاوہ مہنگائی سے پریشان ہے، اور دوسری طرف پولیس چالانات کرتے ہوئے عوام کو پریشان کر رہی ہے۔ The crime graph, which remained somewhat low during the COVID-19 lockdown period in 2020 and 2021, has shot up in the month after the unlocking began in 2021. The trend has continued during the year 2022, sir. So there is a sudden spurt in murders in the Twin Cities as well as in other parts of the state, sir. So in the recent week, many daylight murders have taken place on busy places in Twin Cities and elsewhere in the state, sir. Sir, the cases of crime against women are also on the increase in the state capital as well as the other part of the state. There are many issues, sir, but I will just go brief and I'll just conclude, sir. ایک important بات میں یہ کہوں گا کہ دن دہاڑے جو قتل ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے۔ دن دہاڑے حملے ہو رہے ہیں شہر میں، پولیس کو اس کو روکنی چاہیے۔ ایسے سخت قانون لانے کی ضرورت ہے کہ لوگ گھبرائیں ہاتھ میں ہتھیار اٹھانے سے پہلے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس کا نوٹ لے گی۔ And one more thing, sir. Sir, یہ traffic چالانات, sir. Sir, traffic police is supposed to regulate the traffic, sir. Magar we see, sir, the traffic police is not regulating the traffic, sir. They sit in one corner, hiding, and they keep on clicking pictures, sir. ایک کونے میں کہیں بھی چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، چھک چھک فوٹو چالان گھر پہ۔ سر غریب لوگ ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، رحم کریے ان پر۔ میری آپ سے درخواست ہے، تھوڑا رحم کریے سر ان پر۔ گیس کی قیمت بڑھنے سے پریشان، پیٹرول سے پریشان، ڈیزل سے پریشان، مہنگائی سے پریشان، گھر سے نکل رہے ہیں تو پولیس والوں سے پریشان، چھپا ہوا ہے، ٹک ٹک مار دے رہا ہے، چالان بھیج دے رہا ہے۔ سر اور اس میں سر غریب کو ہی چالان بھرنا پڑا ہے۔ میں
हुकूमत से मुतालबा करूंगा, होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा, हां साहब सही है, ये जरूरी है कि हमको कानून को इंप्लीमेंट करना है, हेलमेट पहनना है, ट्रिपल राइडिंग नहीं होना है, लेकिन उसके बाद भी जरा थोड़ी इतनी सख्ती ना करे, मेरी आपसे दरखास्त है। और जितने छोटे मोटे चालानात हैं उनको अगर माफ कर सकते हैं तो माफ करिए, गरीब आवाम खुश हो जाएगी। छोटे मोटे माफ कर दीजिए, एटलीस्ट कोविड के टाइम पर भी हम मुतालबा कर रहे थे कि कोविड के टाइम पे जो चालानात हुए उसको माफ करिए। वैसे ही अगर टू व्हीलर्स का अगर रहा, छोटी टू व्हीलर्स का और ऑटोस का रहा तो जरा उसके ऊपर भी करें। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के.टी. रामाराव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास से वक़फ़े सवालात के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत चार मीनार पैदल राहगीर प्रोजेक्ट को आलीशान तौर पर पाए तकमील करने के लिए तेज़ी के साथ इक़दामात कर रही है और हुकूमत हैदराबाद को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा हासिल करने की कोशिश भी कर रही है, जिसके मद्देनज़र हम हैदराबाद की हकीकी पहचान चार मीनार की अज़मत रफ्ता को बहाल करने में संजीदा हैं और चार मीनार प्रोजेक्ट आइंदा 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि रोड वाइंडिंग के लिए 192 इमारतों में से 80 इमारतें हासिल कर ली गई और इस काम के लिए हुकूमत के पास 100 करोड़ रुपये मौजूद हैं। मज़ीद 50 था 60 करोड़ का इजाफा भी होगा तो हुकूमत वो भी देने के इक़दामात करेगी। क़ाबिल अज़ीम मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो चार मीनार प्रोजेक्ट को रूब अमल लाने से पहले उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ाजात में रोड वाइंडनिंग के काम पाए तकमील करे, क्योंकि 1986 से चार मीनार, फलकनुमा, पुरानी हवेली, हुसैनी अलम, दूध बौली और दीगर इलाक़ाजात में तकरीबन 2 लाख अफराद मुक़ीम हैं और मज़कूरा इलाक़ाजात की शाहराहों पर आवाम को पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है। इसलिए उन इलाक़ाजात में रोड वाइंडिंग करने के बाद चार मीनार प्रोजेक्ट का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ लाड़ा बाज़ार और सरदार महल को खूबसूरत बनाने से मसले का हल नहीं होगा। उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को मुतबादिल जगह फराहम करने का भी मुतालबा किया। दूध बौड़ी से हुसैनी आलम, ये 86 के प्रोजेक्ट्स है, आज तक इसकी वाइडनिंग कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप फिजिकली अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ के सराउंडिंग के जो लोकेलिटीज है, हरी बौली, गोलीपुरा, लाल दरवाज़ा, अलियाबाद, मुगलपुरा, सुल्तान शाही, खाजीपुरा, ये तमाम बस्तियों के कम से कम 2 लाख से ज़्यादा का एरिया का पॉपुलेशन है। इनको चलने के लिए रोड नहीं है, रोडों के ऊपर इतनी ट्रैफिक है कि 10-10 मिनट तक रोड क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि ये तमाम रोडों को आप पहले वाइडनिंग करिए। आप लाल बाजार को डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरदार महल को डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आने जाने के जो रास्ते हैं, 5 मिनट का रास्ता 20 मिनट में भी तय नहीं हो सकता। जैसा कि चार मीनार का बस स्टैंड है, आप चार मीनार का बस स्टैंड वहां से शिफ्ट कर दिए। मोती गली पेंशन पेमेंट ऑफिस में पार्किंग लॉट बनाने के लिए चार मीनार पे पार्किंग लॉट बनाने का वायदा किए, लेकिन आज तक वो काम मुकम्मिल नहीं हुआ। काम मुकम्मिल तो मुकम्मिल, मोती गली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, फाउंडेशन स्टोन रखकर भी 4-5 साल का अरसा हुआ, लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पार्किंग लॉट कंप्लीट करिए, सराउंडिंग के जो रोड्स है। అధ్యక్ష, హైదరాబాద్లో పుట్టిన పెరిగిన ఎవరికైనా కూడా హైదరాబాద్ అంటేనే చార్మినార్ అనేది ఒక గొప్ప చిహ్నంగా, గొప్ప గౌరవంగా, हकीकी हैदराबाद जो है, जो असली हैदराबाद जो है, उसका पहचान और उसका निशान हमेशा चारमीनार ही रहेंगे। जितने भी नए बिल्डिंग आने दो, जितने भी अच्छे अच्छे इमारत बनने दो, असली हैदराबाद का पहचान हमेशा चारमीनार रहेगा। हम सबके लिए नाज की बात है, फ़ख्र की बात है कि हैदराबाद जैसी एक खूबसूरत इमारत अपने शहर में। इसलिए हमने जब एक प्रोग्राम सीपीपी का लिया, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो मैं आपको एक बार आपके जहन में लाना चाहता हूँ, आप साथ ही साथ पूरे आवाम के जहन में भी लाना चाहता हूँ। रेस्टोरेशन और रीडेवलपमेंट ऑफ लाड़ बाजार, रीडेवलपमेंट ऑफ सरदार महल, पेडेस्ट्रियनाइजेशन ब्रिजेस ऑन मूसी,
multi-level car parkings at Khilwat and also old RTC bus station, restoration of Ashur Khana, Badshai Ashur Khana, restoration of Gulzar House, restoration of Kali Kaman, redevelopment of Muiralam Mandi, redevelopment of Murgi Chowk. साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आपको, ये प्रोग्राम जो है चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट, इसमें एक आउटर रिंग रोड है 5.4 किलोमीटर वाला, साथ ही साथ एक इनर रिंग रोड है 2.3 किलोमीटर, पूरे ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है चार मीनार से गुलजार हाउस तक, ये पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है चार मीनार से सरदार महल तक, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट करना है लाड बाजार पे, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट कॉबल स्टोन फॉर मक्का मस्जिद के पास, ये भी पूरा हो चुका है। स्ट्रीट स्केपिंग ऑफ ओल्ड सिटी मदीना टू पत्थरगट्टी, ये भी पूरा हो चुका है। वर्क कंप्लीट भी हो चुका है और जिस एक्सटेंट तक अवेलेबल था वहां तक मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ एक डक्ट कंप्लीट करना था, वो भी हमने कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रल मीडियन अभी इसको लेना है रोड वाइडनिंग के बाद, और HMR प्रोजेक्ट भी एक है उसमें, तो उसको साथ साथ लेके चलना है। मेट्रो रेल का सेंट्रल लाइटिंग भी करना है, अभी भी दिस हैज टू बी टेकन अप। इसमें रोड मार्किंग लेने हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर जो भी इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चिल्ला हो, जो भी हैं, कुल मिला के 19 हैं, 29 हैं, तो इनको भी आपके साथ बैठ के मिल के इसको भी काम मुकम्मल करने के लिए इनका भी कोऑपरेशन हमें चाहिए होगा। साथ ही साथ एडिक्वेट नंबर ऑफ बोलर्स जो लगाने हैं वहाँ पे, ताकि पेडेस्ट्रियनाइजेशन पूरी तरह से मुकम्मल हो, प्रोग्रेस में है। आपका मदद चाहिए होगा, आपका वहाँ पे थोड़ा लोकल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी वहाँ पे है। साथ ही साथ वहाँ पे लाड बाजार में एग्जिस्टिंग कॉबल स्टोन को रिप्लेस करने की भी बात हुई थी, ये भी हम लोग कमिटेड तरह से काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, अभी तक जो भी मैंने कहा, जैसे अभी रोड वाइडनिंग की अभी बात हुई थी, रोड वाइडनिंग चार रोड जो CPP के अंदर हैं, चार कमान से आगरा होटल तक रोड वाइडनिंग हो गया, और चार मीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से लेके काली कमान तक और BSNL वया दारुल उलूम हाई स्कूल कंप्लीट हो गया। एक प्रॉपर्टी उसमें एक स्कूल साइड वाला रुक गया, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, हम लोग डिपार्टमेंट के साथ हम लोग डिस्कशन में हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी का शहर से जुलू खाना तक है, वो हाई कोर्ट ने एक स्टे ग्रांट किया, तो उस वजह से थोड़ा देरी हो रही है। मक्का मस्जिद वही मेजरीन कैंप टू जुलू खाना मार्केट, वहां तक एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर से रोड जा रही है, उनके लैंड से जा रही है, तो वहां थोड़ा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परसों जब मीटिंग हुई थी मेरी अकबर ओवैसी साहब के साथ, उसमें चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट पे भी काफी सारा डिस्कशन हुआ। मैं मुमताज खान साहब से कहना चाहता हूं, अभी जो रोड वाइडनिंग की आपने बात की, हिम्मतपुर टू फतेह दरवाजा, इसमें कुल मिला के 172 प्रॉपर्टीज हैं एक्वायर करने का। इसमें ऑलरेडी हमने 102 हमने डिमोलिश किया है, 70 अभी बाकी है, ये हम लोग 2-3 महीने के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैनी आलम से दूध बोली की आपने बात की, इसमें 192 प्रॉपर्टीज हैं, डिमोलिश 83 हमने कर दिया, बैलेंस 109 है, ये भी हम 2-3 महीने में, अभी पैसे हमने कल मंजूर किया तो हो जाएगा। साथ ही साथ बाकी जो SRDP के अंडर भी कुछ रोड लेके, उसमें भी रोड वाइडनिंग को भी इसमें शामिल करके लेने की कोशिश कर रहे हैं। CPP की जो आपने बात की, एक पार्किंग की, हॉकर कॉम्प्लेक्स ओल्ड चार मीनार बस स्टैंड पे हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, और 4,000 स्क्वायर यार्ड का जमीन है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है, इसको भी एक फाउंडेशन डालना है। अकबर साहब ने रिक्वेस्ट किया था, मैं आता हूं, मैं खुद आऊंगा ओल्ड सिटी, और फाउंडेशन भी संगे बुनियाद भी करेंगे, आगे ले जाएंगे। वज़ीर बल्दी नमोनक्स KT रामाराव ने बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान BRS अरकान असम्बली विवेकानंद गांधी, D नागेंद्र और MIM रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि दूसरे मरहले का काम जारी है और पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के आगाज़ के लिए हुकूमत ने रोड वाइडनिंग के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। KTR ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो रेल के साथ सौतेलाना सलूक इख्तियार
कर रही है और कोई माली इमदाद फराहम नहीं की गई, जबकि यही मरकज़ी हुकूमत कर्नाटक, चेन्नई, यूपी, गुजरात और दीगर रियासतों में शुरू किए गए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 20% सरमाया फराहम कर रही है और उसकी गारंटी भी दे रही है, लेकिन हैदराबाद मेट्रो रेल को माली मदद न करने के सिलसिले में मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं। हालांकि हैदराबाद में मेट्रो रेल के कामयाबी के साथ रूबेअमल लाई गई है। क़ाबिल अज़ीम मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने पुराने शहर में तेज़ी के साथ मेट्रो रेल के काम शुरू करने का मुतालबा किया, जबकि अरकान असम्बली डी नागेंद्र और विवेकानंद गांधी ने दूसरे मरहले के तामीरी कामों की तफसीलात की जानकारी हासिल की। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं मेट्रो रेल के ऊपर ये सवाल पूछना चाह रहा हूं सर कि ओल्ड सिटी के अंदर फेज 1 में मेट्रो रेल के बारे में बोला गया था सर, अभी तक चालू नहीं, वो कब चालू होने वाली है ये बताइए सर। और फेज 2 के अंदर सर मेट्रो रेल एलबी नगर वया अवैसी हॉस्पिटल टू फलकनुमा टू शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए उसका भी काम जल्द से जल्द फेज 2 में लेकर स्टार्ट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। जाफर हुसैन साहब ने जो ओल्ड सिटी मेट्रो के बारे में पूछा साहब, कल अकबर साहब ने भी जिक्र किया, अकबर साहब ने भी एम ड्यूटी डिमांड पे भी उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम वहाँ रोड वाइडनिंग शुरू कर दो बोले। हमने ऑलरेडी 100 करोड़ के साथ रोड वाइडनिंग का काम शुरू कर दिया है वहाँ पे। जो अकबर साहब ने आपके लीडर ने रिक्वेस्ट किया उसको ज़रूर हम मुकम्मल करेंगे। साथ ही साथ ओल्ड सिटी मेट्रो का जो है वी आर कमिटेड टू दैट, विल कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन दैट। वज़ीर बल्दी नमस के.टी. रामाराव ने असम्बली के बजट इजलास में ही BRS रुकन असम्बली डी नागेंद्र और मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मुल्क भर में नालों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर नालों के तामीर कामों को बड़ी हद तक पाए तकमील किया गया, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और तेलुगु देशम बरसर इख्तिदार रहते हुए इस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी और कांग्रेस के दौर में मुशीराबाद के भोलकपुर में एक बड़ा वाक़या भी रोनुमा हुआ था। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में SNDP प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ नालों के तामीरी काम पाए तकमील किए जा रहे हैं, बल्कि 100% सीवरेज लाइन के तामीरी काम भी किए गए और नाजायज़ कब्ज़ात को बर्खास्त करने के इक़दाम किए गए। उन्होंने अरकान असम्बली के पेश करदा तजावीज़ पर भी गौर किए जाने का ऐलान किया। क़ाबिल अज़ीम मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि 2020 में हैदराबाद में तूफ़ान के बाद बड़ी तबाही आई थी। उसके बाद वज़ीर बल्दी नमस और सदर मजलिस ने मुख्तलिफ मुतासरा इलाक़ों का दौरा करने के बाद नालों के तामीरी काम करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अभी भी कई काम बाकी हैं और कई तामीरी काम आहिस्ता चल रहे हैं। उन कामों को जल्द से जल्द पाए तकमील करने का उन्होंने मुतालबा किया। BRS रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने उनके हल्के असम्बली खैरताबाद के मसाइल को पेश करते हुए बारिश से कबल तमाम नालों के तामीरी काम पाए तकमील करने का मुतालबा किया। और मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ कि कई काम ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो बिल्कुल स्लो प्रोग्रेस में चल रहे हैं, उसको स्पीड कराने की ज़रूरत है। और एक बात, जो शातम तालाब को जब MP साहब हमारे और म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब आकर देखे थे, वहाँ से डिसाइड करे थे कि शातम तालाब से मोती दराजे से अफसर खान कॉलोनी, लंगर हाउस, बाबू घाट, मूसी के लिए एक नाले का एक SNDP में एक प्रपोजल दिए थे, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, उसको भी स्पीडअप कराने की ज़रूरत है। और आया साल जैसा कि नामपल्ली हल्के के अंदर अफजल सागर का नाला है और जो मेहदीपट्टनम का नाला है और जो बलकापुर नाला है वो बिल्कुल प्रोग्रेस में नहीं है, स्लो है, उसको भी एक मिनट तक, क्योंकि तूफान का मामला है, कभी भी बारिश आ सकती है सब। और यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आर्मी से हमारे हैदराबाद MP असदुद्दीन साहब के कई मरतबा लेटर्स दिल्ली को भेजने के बाद आर्मी के ओहदेदारों से मिनिस्टर साहब भी बात करें, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बात करें, उसके बाद NOC मिला जो बुल्कापुर नाले को डाइवर्शन करने के लिए, जो बुल्कापुर नाले से सिद्दीक नगर से होते रेती बोली से मूसी का, वो मगर आज ये लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, उसको भी स्टार्ट कराने की जरूरत है। और मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से ये बताना चाह रहा हूँ कि कारवान के अंदर और कई सेकंड फेज के अंदर SNDP के अंदर नालों की लेने की जरूरत है, क्योंकि लोटस पॉन्ड, बंजारा मुकरमजा शुरू का जो पानी आता है वो हल्के मेरे कारवान हकीमपेट से होते हुए टोली चौकी को आता है, वो भी 3-4 नाले हैं SNDP में फेज 2 में लेने की जरूरत है। शुक्रिया। దేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సార్ మొట్టమొదటి ఇందులో సార్ మీ అందరికి తెలుసు, గౌరవ సభ్యులందరికీ కూడా తెలుసు సార్, హైదరాబాద్లో 1908లో సార్, అంటే దాదాపు ఒక 114 ఏళ్ళ కిందట, 113 ఏళ్ళ కిందట అతిపెద్ద వరదలు వచ్చినాయి.
వరదలు వచ్చిన తర్వాత ఆనాడు అప్పుడు విశ్వేశ్వరయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వరదలు మళ్ళీ భవిష్యత్తులో రాకుండా ఆ మూసి ఉప్పొంగి అప్పుడంతా మొత్తం జలమయమైన తర్వాత కొన్ని ప్రణాళికలు రూపొందించి ఆనాడు హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ కట్టడంతో పాటుగా కొన్ని నాలాలు వీటన్నిటిని కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా రూపొందించారు సార్. సిస్టమేటిక్గా మొట్టమొదటిసారి ఎస్ఎన్డిపి పేరిట ఒక కార్యక్రమం తీసుకొని ఎట్లా అయితే ఎస్ఆర్డిపి తీసుకున్నామో, ఎట్లా అయితే 8,000 కోట్లు ఎస్ఆర్డిపికి పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం రోడ్లను వ్యూహాత్మకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాము, ఎస్టీపీలు చేసుకుంటా ఉన్నాము, 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము, అదే మాదిరిగా ఎస్ఎన్డిపి కూడా తీసుకున్నాం సార్. रियासत तेलंगाना के तमाम सहाफ़ियों को मकानात और मकानात के लिए अराज़ी मख्तस की जाएगी। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव ने असम्बली में यह ऐलान किया। KTR ने कहा कि रियासत गिर सतह पर 16,000 सहाफ़ियों को मकानात और मकानात के लिए अराज़ी मख्तस करने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि कोविड बहरान के दौरान में सहाफ़ियों की इंसानी हमदर्दी की बिना पर भी मदद की गई। रियासती वज़ीर ने यह भी कहा कि सोमाजीगुड़ा और बशीरबाग प्रेस क्लब्स की तरक्की के लिए फ़ंड्स मख्तस किए जाएंगे। 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలోనైనా 16,000 అక్రెడిటేషన్ కార్డులు ఉన్న చరిత్ర ఉందా అధ్యక్ష? గుజరాత్ రాష్ట్రం అధ్యక్ష నేను తెప్పించుకున్నా. గుజరాత్ రాష్ట్రంలో 3,000 అక్రెడిటేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా 2,000, 3,000కు మించి అక్రెడిటెడ్ జర్నలిస్టులు లేరు. మనకంటే 4 రెట్లు 5 రెట్లు పెద్దదైన రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున అక్రెడిటేషన్ కార్డుల సంఖ్య లేదు. అదే ఈ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఎందుకంటే ఉద్యమంలో మాతో పాటు నడిచిన వాళ్ళు కలం వీరులు, జర్నలిస్టులు, వాళ్ళ యాజమాన్యాలు మాకు అనుకూలంగా లేకపోయినా మాతో పాటు కలిసి నడిచిన వాళ్ళు. అందుకే వారి మీద ఉన్న ప్రేమతో నేను అడుగుతా ఉన్న సూటిగా, భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఏ రాష్ట్రమైనా 100 కోట్ల సంక్షేమ నిధిని జర్నలిస్టులకు కేటాయించిన దాఖలాలు ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా? 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రానంతరం ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కానీ ఇట్లాంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జర్నలిస్టుల కోసం చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారా? కేసీఆర్ తప్ప. కాబట్టి చేసిన దాన్ని కూడా చెప్పకుండా కేవలం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇంకేదో జరగలేదన్నట్టు, అసలు ఏమీ జరుగుతలేదన్నట్టు మాట్లాడడం భావ్యం కాదని చెప్పి కూడా నేను గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. కేవలం 100 కోట్లు కేటాయించడమే కాదు, ఇప్పటికే తెలంగాణ మీడియా అకాడమీకి 42 కోట్లు విడుదల చేయడం జరిగింది. జర్నలిస్ట్ కుటుంబానికి ఆ సంక్షేమ నిధి కింద ఎవరైనా మరణిస్తే 1,00,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. అనారోగ్యం కానీ, పెద్ద ప్రమాదాలు ఏమైనా జరిగి విధులు నిర్వహించలేని డిజబిలిటీ కానీ వస్తే అట్లాంటి జర్నలిస్టులందరికీ కూడా 50,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం జరుగుతూ ఉంది. మరణించిన జర్నలిస్ట్ కుటుంబానికి 3,000 రూపాయల చొప్పున 5 సంవత్సరాల పాటు పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా. ఇద్దరు పిల్లలకి నెలకి 1,000 రూపాయలతో మరి ఎల్కేజీ నుంచి 10వ తరగతి వరకు ట్యూషన్ ఫీజు కూడా చెల్లించడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మన దేశంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించదలుచుకున్న జర్నలిస్టు పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే 1,00,000 రూపాయల చొప్పున వారికి ఈ నిధి నుంచే, అదేవిధంగా విదేశాల్లో కూడా ఎవరైనా గుర్తించబడ్డ జర్నలిజం కోర్సులు చదవడానికి పోదలుచుకుంటే 5,00,000 రూపాయల వరకు దీని నుంచి కేటాయించడం జరుగుతూ ఉంది. అధ్యక్ష, కోవిడ్ సమయంలో కూడా జర్నలిస్టు మిత్రులు చాలా ధైర్యంగా వారి వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించి ఆనాడు అందరం ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు కూడా వారు బయటికి పోయి వార్తలు సేకరించినారు అధ్యక్ష. ఆనాడు కొంతమంది మిత్రులు చనిపోయినారు, జర్నలిస్టు మిత్రులు. వారందరికీ కోవిడ్-19 మరణించిన వారు కానీ, అదేవిధంగా అనారోగ్యం పాలైన వాళ్ళు కానీ, వారికి కూడా 6,88,00,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం అందజేసిన మాట కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లను కూడా ఆదుకున్న ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి, ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ అధ్యక్ష. मजलिसी कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली के बजट इजलास में हिस्सा लेते हुए कहा कि 2020 में शहर के सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए जियो निकाला गया था, जिस पर अब तक मुकम्मल अमलावरी नहीं हो पाई है। कायद मुखन्ना ने कहा कि जियो के तहत सैलाब में मुकम्मल तबाहशुदा अफराद की भी मदद का तयक़ुन दिया गया था, ताहम इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने सैलाब में जुज़वी नुकसान उठाने वाले ख़ानदानों की मदद की थी, जिसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करती है, लेकिन मुकम्मल तबाह ख़ानदानों की मदद करना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उनकी भी मदद करेगी। और जब ये तूफान आया था तो मेरा एरिया चंद्रायन गुट्टा हल्का काफी मुतासिर हुआ था पल्ले चेरू और गुरम चेरू तालाब के टूटने से, और उसके बाद में काफी इमदादी काम हुकूमत की जानिब से किया गया और जंगी पैमाने पर किया गया, जिसका मैं ममनून और मशकूर हूं। लेकिन यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि हमने पुराने शहर के
وہ مصیبت زدہ لوگ جو پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے اپنے روزمرہ کی چیزوں سے محروم ہو چکے تھے اور پریشانی کا شکار تھے، تو ہم نے اپنی جانب سے بھی کروڑوں روپے کی امداد کی، ان کو کپڑے دیے، برتن دیے، سونے کے لیے بستر دیا اور پھر پکانے کے لیے چولہا بھی دیا، اور جتنے بھی متاثرین کے گھروں میں جہاں پہ لائٹ ان کی خراب ہو گئی تھی، واشنگ مشینز خراب ہو گئے تھے، ریفریجریٹرز خراب ہو گئے تھے، ہم نے اپنی جانب سے جتنی مدد ہو سکتی ہے ان کی مدد ہم نے کی تھی۔ لیکن یہ بھی بات میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ اس وقت جیو نکالا گیا تھا، امداد تو ضرور دی گئی، لیکن پارشلی ڈیمیج اور کمپلیٹلی ڈیمیج کو بھی دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن کمپلیٹلی جو گھر ڈیمیج ہوئے ان کو آج کی تاریخ تک بھی ایک پیسے کی امداد نہیں دی گئی۔ پارشلی ڈیمیج کو دیا گیا۔ میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ محمود علی صاحب آئے تھے، ہم سارے ایریے کا دورہ کیے اور لوگوں میں چیکس بھی تقسیم کیے، لیکن مکمل جو تباہ ہوئے تھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ میں امید کروں گا کہ حکومت کی جانب سے مکمل جو تباہ برباد ہوئے تھے ان کے اوپر بھی غور کیا جائے گا اور کچھ نہ کچھ ان کو امداد دی جائے گی۔ سر، میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری تقررات کے امتحانات ہوں گے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو یا کسی اور محکمہ جات میں ہو، چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ اردو میں امتحانات ہوں گے، تو میں امید کرتا ہوں پینل سپیکر آپ کے ذریعے کہ ایک جیو نکال کر ایک صاف اور کلیئر واضح احکامات دے دیے جائیں کہ جتنے بھی تقررات ہوں گے ان ساروں کے امتحانات اردو میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کیا۔ حیدرآباد میں واقع نیشنل پولیس اکیڈمی میں منعقدہ تقریب سے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ دوسری جانب صدر کل ہند اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کی جانب سے تعمیر کیے گئے نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کافی خوبصورت ہے اور انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ KCR کے سلسلے میں انہوں نے ستائش بھی کی۔ ان خبروں کے علاوہ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے ناظرین محمد اختر کے ساتھ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ حیدرآباد کے دورے پر ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حیدرآباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں 74ویں بیچ کے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی میں انڈین پولیس سروس IPS پروبیشنرز سے بھی خطاب کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حیدرآباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مشاہدے کے بعد خطاب کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ گزشتہ دنوں ملک بھر میں بیک وقت PFI پر پابندی لگاتے ہوئے اور کارروائی کرتے ہوئے ہم نے دنیا کو اپنی بہترین سیکورٹی کا ثبوت دکھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ اور ایک ہی دن میں ہم نے PFI جیسی تنظیم پر پابندی عائد کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ NDA حکومت جموں کشمیر میں دہشت گردی اور ملک میں بائیں بازو کی انتہا پسندی پر قابو پانے میں کامیاب رہی، جبکہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI پر حالیہ پابندی کے ذریعے ہم نے دنیا کے سامنے ایک کامیاب مثال پیش کی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری ایجنسیوں کی قیادت میں ملک کی پولیس فورس نے ایک ہی دن میں PFI جیسی تنظیم کے خلاف کامیاب آپریشن انجام دیا۔ امت شاہ نے کہا کہ NIA و NCB کی توسیع سے نارکوٹکس اور دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو قابو کرنے میں مدد ملی ہے۔ PFI پر بین لگا کر ایک بہت سفل اداہرن ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ بھارت سرکار کی ایجنسیوں کے نیترتو میں دیش بھر کی پولیس نے ایک ساتھ ایک ہی دن میں سفل آپریشن کر کر PFI جیسے سنگٹھن کو بین کر کر ایک سفلتا حاصل کی۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا لوک تنتر کے پرتی کمٹمنٹ کتنا سدھڑ اور مضبوط ہوا ہے۔ ٹیررزم کے
ریاستی حکومت کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے سیکریٹریٹ کی عمارت کا افتتاح جو 17 فروری کو عمل میں آنے والا تھا اسے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی ایم او آفس سے جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ قانون ساز کونسل کے 2 MLC نشستوں کے لیے انتخابات کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے شیڈول بھی جاری کر دیا۔ اسی کے تحت حیدرآباد کے علاوہ 3 ڈسٹرکٹ میں بھی انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو چکا ہے، اس لیے اس تقریب کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کی ستائش کی ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے تاج محل سے زیادہ خوبصورت سیکریٹریٹ کی عمارت تعمیر کروائی ہے۔ ملک بھر میں اس نوعیت کی خوبصورت عمارت نہیں پائی جاتی۔ صدر مجلس نے کہا کہ سڑک سے گزرتے ہوئے سیکریٹریٹ کی عمارت دیکھ کر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ سیکریٹریٹ کی اس عمارت کو دیکھنے کے لیے تاج محل سے زیادہ سیاح آئیں گے۔ انہوں نے نئے سیکریٹریٹ میں مساجد کے علاوہ دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی تعمیر کا بھی خیر مقدم کیا۔ انہوں نے نئے سیکریٹریٹ میں مذہبی ہم آہنگی کا نمونہ پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ KCR سے اظہار تشکر کیا۔ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین پر اب تلنگانہ میں بھی سنگباری کی اطلاعات ملی ہیں۔ پتھراؤ کا یہ واقعہ سکندرآباد وشاکھاپٹنم وندے بھارت ایکسپریس ٹرین پر اس وقت پیش آیا جب وہ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد سے گزر رہی تھی۔ ریلوے پروٹیکشن فورس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے جانچ کی شروع کر دی ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ ابتدائی جانچ میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بچوں نے ممکنہ طور پر ٹرین پر یہ سنگباری کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 جنوری کو مکر سنکرانتی کے موقع پر سکندرآباد وشاکھاپٹنم وندے بھارت ایکسپریس ٹرین سروس کو ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام 2 روزہ خواتین کانفرنس کا عیدگاہ میرالم گراؤنڈ پر آغاز ہوا۔ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد نے مذکورہ 2 یومی کانفرنس کا افتتاح انجام دیا۔ افتتاحی اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں مولانا سید درویش محی الدین قادری، مولانا سید فضل اللہ قادری، مولانا حسان فاروقی، مولانا حافظ ڈاکٹر محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ صدر استقبالیہ کمیٹی ایڈوکیٹ سید شاہ نور الحق قادری کی نگرانی میں انتظامات کیے گئے، جس میں بڑی تعداد میں لڑکیوں اور خواتین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری بانی و ناظم جامعۃ المومنات اور مولانا ڈاکٹر مفتی صابر پاشا نے مہمانوں و شرکا کا خیر مقدم کیا۔ اپنے والے نے یہ وصیت کی، جیسا عرب کا دستور تھا، پہلے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ مرنے والا اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی بڑائی بتانے کے لیے یہ اپنے لوگوں کو وصیت کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا رونے والے رویا کرے، ایسا چیخنے والی چیخا کرے، ایسا نوحہ کرنے والے عورتیں آئے نوحہ کریں، تاکہ میری شخصیت عام ہو، میری شخصیت کی عظمت ظاہر۔ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث سے بات یہ مت کر، انہوں نے فرمایا کہ یہ تھا حضرت عائشہ کا ہی، یہ تھا کہ عائشہ کا تھا۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بارش شروع جاتی ہے تو ہم کو حکم دیا گیا کہ جنگل کی طرف نکلو، نماز پڑھو، دعا کرو۔ یہ عام شریعت کا فیصلہ احادیث سے بھی ثابت کہ حضور پاک علیہ السلام نے بھی استسقاء کی نماز ادا کرنا، دعا کرنا۔ حیدرآباد میں آج فارمولا ای چیمپئن شپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے حسین ساگر جھیل کے قریب آج حیدرآباد ای پری
ABBFIA فارمولا ای ورلڈ چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ حیدرآباد میں 2.8 کلومیٹر کا ٹریک پہلی بار ہندوستان میں فارمولا ای ریس کی میزبانی کرے گا، جس میں 18 موڑ ہیں۔ گرانڈ اسٹینڈ کی گنجائش 20,000 افراد کی ہے، جس میں ٹکٹ 4 زمروں کے شامل ہیں۔ فارمولا ای الیکٹرک گاڑیوں پر مشتمل موٹر اسپورٹ ہے، جبکہ فارمولا 1 پیٹرول کا استعمال کرتا ہے۔ دونوں ریس میں کاریں بہت مختلف ہیں۔ فارمولا ای ریس میں 250 کلو واٹ کی بیٹری ہے، جس کی رفتار 280 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی پیر کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کے دورے سے قبل شہر میں ایک بار پھر پوسٹر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ شہر میں مختلف بس سٹاپس پر پوسٹرز لگائے گئے ہیں کہ مودی جی آپ کا امرت کال بجٹ کے لیے تلنگانہ کے متوسط طبقے کی طرف سے شکریہ۔ ان پوسٹرز کے جواب میں دوسرے دن نئے پوسٹرز نظر آئے، جن میں وزیر اعظم پر مرکزی بجٹ کے لیے شدید تنقید کی گئی۔ ان پوسٹرز پر گنجے شخص کی تصویر موجود ہے، ساتھ ہی یہ بھی تحریر تھا کہ یہ ہندوستان کی ترقی کی کہانی ہے۔ بی جے پی تلنگانہ یونٹ کے صدر بنڈی سنجے نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ریاست کے نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کے گنبدوں کو گرا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور تلنگانہ کی تہذیب کو ہم آہنگ کرنے کے لیے نئی سیکریٹریٹ کی عمارتیں تبدیل کی جائیں گی۔ ایک مہم کے تحت اولڈ بوئن پلی میں نکڑ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر تنقید کی اور وزیر اعلیٰ کی 17 فروری کو ان کی سالگرہ کے موقع پر نئے سیکریٹریٹ کے افتتاح کرنے پر بھی ناراضگی ظاہر کی۔ సచివాలయాన్ని కట్టి ఇలా ఎంఏ పార్టీకి అప్పయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। 400 కోట్లను 800 కోట్లు చేసిండు, 800 కోట్లను 1200 కోట్లు చేసిండు, 1200 కోట్లు కడతాడు, మళ్ళా 300 కోట్ల కంప్యూటర్లట అవ్వట ఇవ్వటని చెప్పి మొత్తం 1500 కోట్లతోని ఇలా సచివాలయాన్ని తాజ్ మహల్ లెక్క కడుతున్నట్టే రాణి అన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడదా ఆ భూములు ఊడ్చేస్తాం, పక్కా ఊడ్చేస్తాం భూములు। BRS MLC बी प्रकाश मुदिराज ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वज़रा KT रामाराव, T हरीश राव, B प्रशांत रेड्डी, दयाकर राव, मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बी प्रकाश मुदिराज ने अपना पर्चा सेक्रेटरी असेंबली नरसिम्हाचार्य के हवाले किया। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से ऐलान किया गया है कि हैदराबाद में चलाई जाने वाली MMTS सर्विसेज 13 ta 15 फरवरी मनसूख की जा रही हैं। मनसूख करने की कोई ख़ास वजह नहीं बताई गई, ताहम ऑपरेशंस में दुश्वारियों के बाद इन सर्विसेज को मनसूख करने की बात कही गई है। जिन MMTS सर्विसेज को मनसूख किया गया है उनमें लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, फलकनुमा ता लिंगमपल्ली, रामचंद्रपुरम ता फलकनुमा, फलकनुमा ता रामचंद्रपुरम सर्विसेज शामिल हैं। मुसाफिरीन से गुजारिश की गई है कि वो इसे नोट कर लें। टीचर्स तंजीमों की जानिब से GO 317 की मनसूखी को लेकर असम्बली के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले टीचर्स को हिरासत में लेते हुए गांधीनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वाज़ रहे कि मज़कूरा GO को लेकर टीचर्स तंजीमें एहतजाज पर उतर आई हैं। జీవో ద్వారా ఇప్పటికే చాలా మంది స్థానికత జిల్లాలు కోల్పోయి మరి ఇప్పటికే నరకయాత పడుతున్నారు। టీచర్లందరినీ కూడా సీఎం కేసీఆర్ గారు మీ యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రతి జిల్లాకు ఎవరైతే నష్టపోయినారో టీచర్ సార్ ఒక నిమిషం మీలాంటి పోలీసులు కూడా మా గురువుల దగ్గర मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़ आबिद अली खां आई हॉस्पिटल के रूबरू एक ट्रांसफार्मर में आतिशज़दगी हादसा पेश आया।
इस हादसे की लपेट में इसी के बाजू वाक़े टायरों की एक दुकान भी जद में आई। ताहम फौरी तौर पर आतिश फरो अमले को मुतहर्रिक किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा पुलिस मकामे हादसे पर पहुंची और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने प्रोड्यूसर सुरेश बाबू और दगुपति राणा तेलुगु एक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने की जुबली हिल्स पुलिस को हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर में वाक़े एक अराजी पर जबरन कब्जे की शिकायत को लेकर प्रमोद कुमार नामी शख्स कोर्ट से रुजू हुआ था, जिसके बाद नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने मज़कूरा हिदायत जारी की है। तुर्की ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हैदराबादियों ने फराग दिलाना इमदाद का रिकॉर्ड कायम कर दिया है और इमदादी सामान को लेकर कौंसल खाना तुर्की वाक़े जुबली हिल्स में जगह कम पड़ रही है। फौरी तौर पर कौंसल खाने की जानिब से ऐलान किया गया है कि इमदादी सामान रास्त कार्गो सर्विस वाक़े GMR एयरपोर्ट शमशाबाद पर दिए जा सकते हैं, जिसके बाद कार्गो सर्विस पर इमदादी पैकेज लेकर अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा है। दूसरी जानिब तुर्की एम्बेसी वाक़े नई दिल्ली ने सोशल मीडिया पर अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात शेयर की हैं, जिसमें रकम मुंतकिल की जा सकती है। हैदराबादियों ने यह साबित कर दिया है कि वो हमेशा की तरह मुसीबत की इस घड़ी में हर मुश्किल मुल्क के साथ ठहर सकते हैं। कौंसल खाना तुर्की की जानिब से तुर्की ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रास्त तौर पर GMR एयरपोर्ट पर वाक़े कार्गो सर्विस के हवाले करने की दरख्वास्त की गई है। हैदराबाद और दीगर अजला से कई अफराद अपने तौर पर इमदादी पैकेज तैयार करते हुए कौंसल खाना और कार्गो से रुजू हुए। इस सिलसिले के तहत BRS छावनी कायद हयात हुसैन हबीब और उनके रुफ़क़ा की जानिब से जमा शुदा अशियाए ज़रूरिया भी GMR एयरपोर्ट पर वाक़े कार्गो सर्विस पहुँचाई गई। इस इमदादी सामान के लिए अहलियान मोहल्ला और उनके दोस्तों ने भी अपना ताउन पेश किया था। जिस तरह से सानेहा तुर्किया में हुआ है ज़लज़ले का, उस असना में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं एड लेकर, और कोशिश हमारी बल्कि नहीं आलम इस्लाम की और सारे जितने भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपना अपना सामान लेकर, जिस तरीके से अपना जज्बे से, ये इंसानियत के जज्बे से ये लोग यहाँ पर लाकर सामान दे रहे हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में हमारा मकसद यहाँ आने का और ये एड पहुँचाने का ये है कि आवाम तक ये बात पहुँचाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि यहाँ आए और यहाँ पर जो नए चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें नहीं, नए कपड़े जो हैं, जो अपने कार्टन में या किसी चीज़ में बंद कर अच्छी तरह से उसको जो है यहाँ पर लाकर पहुँचाए। इस वक्त की सख्त ज़रूरत है। सारी दुनिया जानती है कि हज़ारों की तादाद में जो लोग जो है ना वहाँ पे जिनका इंतकाल हुआ है और जिस तरह से वहाँ पे तबाही मची है, इसके अंदर हमारे देश से जो हमारा मैसेज दे रहे हैं हमारे देश से कि हम लोग भी दोस्ताना ताल्लुकात से या उस कंट्री तक हमारा ये सारा एड पहुँचे और बराबर तरीके से उनका साथ दिया जाए। ये हम क्या दे रहे नहीं, हम तो हम उसका खुलासा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि जो है ना ये एक चीज़ एक खिदमत खल्क है, इसके अंदर हम कोई चीज़ बताना नहीं चाह रहे कि हम लोग क्या दे रहे हैं, मगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, एसेंशियल गुड्स जो है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो यहाँ पे लिया जा रहा है। ब्लैंकेट्स है, वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, इस वजह से ब्लैंकेट्स है, और आपके जो है ना कुछ लेडीज़ के सामान है, साथ में बच्चों के पैम्पर्स है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने एसेंशियल गुड्स हैं वो यहाँ पर लाएँ और लाकर यहाँ पर पहुँचाएँ।
बज़्म असातिज़ा की जानिब से सदर शोबा उर्दू इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को तहनीत पेश की गई। रियासती सदर बज़्म सैयद रऊफ रेहान के मुताबिक मोहम्मद वहीदुद्दीन जो कि सदर शोबा उर्दू इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू में PhD अता किए जाने की मसरत में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद हुसामुद्दीन रियाज सदर मुदर्रिस गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दबीरपुरा के अलावा बज़्म के दीगर जिम्मेदारान और अराकीन भी मौजूद थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट के बशमुल पुराने शहर के दीगर प्रोजेक्ट्स बावखार तरीके पर मुकम्मल किए जाएंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर KTR का ऐवान असम्बली में बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। कत्ल की वारदातों को रोकने सख्त इक़दामात नागुज़ीर। क़ायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से किया मुतालबा। नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताम मुलतवी। MLC ज़ाब्ते अखलाक का हुकूमत ने दिया हवाला। रियासत में तकरीबन 16,000 सहाफ़ियों को अराज़ी और इम्काना फराहम की जाएगी। रियासती वज़ीर KTR का ऐवान असम्बली में बयान। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हैदराबाद आमद। नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड का किया मुशाहिदा। तक़रीब से किया खिताब। कौंसल खाना तुर्की ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान हासिल करना रोक दिया। रास्ते कार्गो सर्विस मुंतकिल करने की दरख्वास्त। तुर्किश एम्बेसी के अकाउंट में रकम की जा सकती है मुंतकिल। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।